अगर ये दिखा रहा है कि ऐसे मारेंगे, लाठी से मारेंगे, डंडे से मारेंगे, तो क्या मैं नहीं, मेरे प्रिपरेशन से नहीं होगी, तो देयर मस्ट बी अ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। For the compliance of Section 38 Clause A, their assault does not only means a preparation or gesture, but it must include what? Physical Physical involvement. involvement. Physical involvement must be there. ठीक है? Now moving to this second clause, that is B. Such an assault, such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault. ऐसे assault से जो है grievous hurt cause होगा। अगर ऐसा apprehension है that by such an assault is of such a nature which reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault. ऐसे assault से क्या होगा? What will happen? Grievous hurt हो जाएगा। Then, in the apprehension of the grievous hurt, a person may cause the death or commit the death of an assailant. अटैकर की डेथ कॉज की जा सकती है जहां पर उसको apprehension है, ऐसी आशंका है कि यहाँ पर डेथ कॉज हो सकती है। स्नो, चलिए अब जल्दी से बताइए। एक चेन स्नेचर है, स्नेचिंग जो करते हैं ना, चेन स्नेचर जो होते हैं, चैन जो है एक वुमेन के, लेडी के नेक से जो है चैन को स्नेच कर रहा था। एट दैट टाइम ही हैड अ नाइफ विद हिम, और उसी नाइफ से उसने जो है गाल पर एक स्कार्स मार दिया। स्कार्स कहते हैं निशान को, गाल को ऐसे कट कर दिया। तो वेदर अ वुमन कैन कॉज द डेथ ऑफ एन असेलेंट इन सच अ केस? बताइए, टेल मी। Yes, sir. She can cause death. Why she can cause the death of an assailant? Sir, because there is a use of criminal force against her. Using a criminal force against her and another thing। बहुत बढ़िया, अच्छा है। और because a person by using an assault against a woman, and in such an assault when the knife has been used by such and the criminal force have been used by such, it caused a grievous hurt to a woman। अब उनकी जो चीख थी उसको ऐसे कट लग गया। अब चीख में कट लगने का मतलब होता है ग्रीवियस हर्ट। अब ये जो कट है ये कम से कम जो है 15 दिन से पहले नहीं जाने वाला। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Then in such a case the woman can cause the death of an assailant। ऐसे मामले में वुमेन उस assailant की, उस अटैकर की, हमलावर की डेथ कॉज कर सकती है अगर उनकी गाल पर वो इस तरीके से घाव लगा देता है जिसमें 15 दिन से ज्यादा उनको हर्ट हो, दुख पहुंचे। क्लियर है? केस लिखिए, नबी बख्श वर्सेस मसखरा। नबी बख्श versus Maskhara. In this case, court has held that a person has the right of private defense. A person has the right of private defense where an act has caused, where an act has caused
only scars on the body such scars reasonably cause apprehension of grievous hurt. क्लियर है? नेक्स्ट, फर्स्ट 2 पॉइंट क्लियर हुए, ए बी सी. An assault with the intention of committing rape. ऐसा असॉल्ट है जिसमें जो है इंटेंशन टू कमिट रेप है, इस तरीके से असॉल्ट कर रहे हैं. देखिए, कमिटिंग रेप है, असॉल्ट है सिर्फ उस तरीके का, रेप नहीं कर रहे हैं, रेप नहीं हुआ. ओनली इन द assault with intention to committing a rape, a woman can cause the death of assailant. Clear है? An assault with the intention of gratifying unnatural lust. In case of the unnatural lust, a death may be caused. Clear है? Of an assailant. Yes, no? Is it clear to you? Next. An assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend से पहले that. भी कुछ होगा. जी सर. An assault with the intention of kidnapping or abducting. An assault with the intention of kidnapping and abducting. In case of the kidnapping or the abduction, a death may be cause of an assailant, where an assault is of such a nature in which it will reasonably apprehend a person for committing an offense of किडनैपिंग और अबडक्शन. चलिए जल्दी से एक प्रॉब्लम बताते हैं. बताइएगा कि whether there is an offense or the right of private defense is available to an accused person. एक नई नई शादी हुई एक कपल की, ए और बी क्या देते हैं हम, कपल मेल ए है और फीमेल बी है. दोनों की शादी हुई, बड़े अच्छे से दोनों रह रहे थे. अब जो फीमेल बी हैं, शी आस्क्ड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आई जस्ट वांट टू गो माय होम टू सी माय मदर, अपनी माँ से मिलने के लिए. वो उन्होंने ठीक है चली जाओ, शाम को घर वापस. अब वो एंड देन शी वेंट, वो चली गई, मिली, घर वालों से मिली. अब रात में उन्होंने वो प्रॉमिस किया था कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए. तो हस्बैंड चले गए, चलिए भैया आप जो है एक दिन से यहाँ हैं, चलिए अब बहुत हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे रुक कर. तो जो पेरेंट्स थे लेडी के, वो कहने लगे बेटा ऐसा करना, कल लेके चले जाना, आज रात है, सुबह की गाड़ी से ले जाना, रात में वैसे भी सफर मत करो, सुबह ले जाना. वो कहने लगे नहीं नहीं पापा आज ही लेके जाएंगे. कहने लगे नहीं बेटा कल ले जाना, आज क्या करोगे ले जाके. इसके उसमें जो हस्बैंड था उसको गुस्सा आ गया. गुस्सा आने पर ही वॉज ड्रैगिंग हर वाइफ, अपनी वाइफ को उसने पकड़ा, ड्रैग किया, ड्रैग करके ले जाने लगा. बिसाइड्स हर वाइफ उसका साला खड़ा था, ब्रदर इन लॉ, लड़की का भाई. उसको गुस्सा आया, वहीं पर चाकू रखा था, चाकू से उसने अपने जीजा पर अटैक किया और जीजा की डेथ कॉज हो गई. समझ रहे हैं आप? जीजा की डेथ कॉज हो गई. बताइए वेदर an accused person will be entitled to get the defense and whether under section 38 he can plead that he had a right of private defense or not. मैं बच्चे बताइए, प्रॉब्लम समझ में आई रोजी? यस सर. बताइए क्या होगा आसिमा?
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? सर वो मतलब रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ का ऐसा था कि वो सर मतलब किडनैपिंग या अब्डक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि मतलब वो तो उसके पेरेंट्स की कंसेंट लेके ले जा रहा था। नहीं, ले जा कहाँ रहा था, घसीट रहा था। मैंने वर्ड ड्रैग यूज किया है, ड्रैगिंग, घसीट रहा था। और अगर आप अबडक्शन और किडनैपिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो किडनैपिंग में कंपल्सरीली होता है कि देयर शुड बी द कंसेंट ऑफ अ लीगल गार्जियन, गार्जियन है ना। लेकिन आप अबडक्शन की बात करेंगे तो वहां लिखा है हु एवर कंपेल्स अनदर टू टेक बाय फोर्स, वहां बाय फोर्स ले रहा था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो बाय फोर्स उसको ड्रैग कर रहा था, घसीट रहा था। तो वहां पर भाई को गुस्सा आया, तो भाई ने इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी ऑफ, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके खुद की बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बॉडी ऑफ द अदर्स ऑल्सो, यस नो? तो यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। द एक्ट ऑफ द ब्रदर वाज, द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड वाज in the right of private defense of the body of her sister. Clear है? Therefore, he has been acquitted by the court. Clear है? चलिए, any doubt till now? सर इसका केस का नाम भी बता दीजिए, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखिए, पूछ ही नहीं रहे हैं। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पढ़िए। An assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. ठीक है, क्या कह रहा है? एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग, अगर रॉन्गफुल कन्फाइन किसी को किया गया है। अब एक बात बताइए, हम जो हैं सपोज किए आई एम द पर्सन एंड आई एम कन्फाइनिंग टू वन पर्सन, एक ए नाम के शख्स को जो कन्फाइन करते और कहते हैं चलिए सीधे सीधे चलिए, गन पॉइंट पे उन्हें कह रहे हैं सीधे सीधे चलिए जिधर जिधर हम कह रहे हैं, इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं, समझ रहे हैं आप? दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर आप किसी को गन पॉइंट पे अपने डायरेक्शन के हिसाब से चला रहे, चलिए इधर चलिए इधर चलिए, अब वो पीछे मुड़ता है और गन को छीनता है और आपको शूट आउट कर देता है। बताइए वेदर ही हैज कमिटेड ऑफेंस और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकता है? बताइए। सर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। मिलेगा ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। An act of throwing or administering acid or an attempt to throw. एक मिनट एक मिनट। अच्छा, यहीं पर जो है 10 मीटर पर जो है पुलिस खड़ी थी, यहीं पर 10 मीटर पर पुलिस खड़ी थी और पुलिस जल्दी ही आगे उसको बचा लेती, उसके बाद भी उसने डेथ कॉज कर दी, देन? सर तब नहीं मिलेगा। तब नहीं मिलेगा। क्योंकि लिखा हुआ है कि पब्लिक रिकॉर्ड अगर कर, तब नहीं। यस ठीक है जी, चिश्ती साहब बताएं। नेक्स्ट पढ़िए। एक ही रिक्वेस्ट है सर, ज्यादा नहीं, बस हम ये कह रहे तो थोड़ा जो है बूथ लैंग्वेज में थोड़ा पढ़ाया तो बड़ा बेहतर होगा। आज थोड़ा सा ज्यादा इंग्लिश हो गया, दोनों में बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट। An assault with the intention of wrongfully ये तो हो गया। An act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act.
समझ रहे हैं? अगर कोई किसी के ऊपर एसिड को फेंकता है या अटेम्प्ट भी करता है एसिड फेंकने का, इन द अटेम्प्टिंग ऑफ थ्रोइंग एसिड a person can cause the death of an assailant in the right of private defense of the body. Yes, no? वैसे ये ओरिजिनली कब ऐड किया गया था आईपीसी में, बताइए? सर 2015 में। 15 में कौन सा अमेंडमेंट आया था? 13 में। 13, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए जल्दी से नेक्स्ट 39. When such right extend to causing any other harm other than death, डेथ के अलावा भी हार्म किया जा सकता है, ठीक है। पढ़िए जल्दी से। If the offense be not of any of the descriptions specified in section 38, the right of आप याद रखिएगा, in case of the description which have not been provided under सेक्शन 38, अगर कोई डिस्क्रिप्शन, कोई जो ये ग्राउंड दिए गए हैं, टोटल जो 7 ग्राउंड दिए गए हैं, इन 7 ग्राउंड में आपका एसिलेंट का एक्ट फॉल नहीं होता, देन द पर्सन कैन नॉट कॉज द डेथ ऑफ द एसिलेंट। उस सर्कमस्टांसिस में एसिलेंट की डेथ कॉज नहीं की जा सकती, कुछ और कर सकते हैं इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्लियर है बात? डेथ कॉज नहीं की जाएगी, डेथ सिर्फ इन 7 सर्कमस्टांसेस में की जा सकती है। यस, यस, नो? ठीक है। देखो कह रहा है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द एसिलेंट in case where it has not been enumerated any of the following provision as herein before contained. क्लियर है बात? चलिए, कमेंसमेंट कब से कब तक माना जाएगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? कंटिन्यू है, कब से कब तक, तो कब से कब तक माना जाएगा? पढ़िए। commencement and continuance of right of private defense of the body. The right of private defense of body commences as soon as the reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat. अंडरलाइन कीजिए, रीजनेबली अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज, जब जो है बॉडी को रीजनेबल अप्रीहेंशन हो जाएगा कि उसकी बॉडी को खतरा है, उसकी जान को खतरा है, तब ये राइट एक्सरसाइज किया जाता है। और कब तक किया जाएगा? जब तक कि वो अप्रीहेंशन कंटिन्यूज है, ऐसी आशंका, ऐसा डर कंटिन्यू है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए, अब when the death of a person or death of a wrongdoer may be caused in the right of private defense of the property. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी किन किन सर्कमस्टांसेस में डेथ कॉज की जा सकती है? देखिए, हमने वहां पढ़ा था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी में टीएमआरसी, थेफ्ट, मिसचीफ, रॉबरी और क्रिमिनल ट्रेसपास में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वन सेल्फ ऑन और द अदर्स। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कौन कौन से ऑफेंसेस है जिनके अगेंस्ट इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अ डेथ में बी कॉज ऑफ अ रॉन्ग डूअर की डेथ कॉज की जा सकती है। तो बताइए जल्दी से। Section 41. When right of private defense of body extends to causing death, the right of private defense of body property extends under the restriction specified in section 37 to the voluntary causing of death or of any harm to the wrongdoer if the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of right be an offense of any of the description herein after enumerated, namely A. Robbery, B. Housebreaking after sunset and before sunrise, C. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज। आईपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, वहां लिखा हुआ था हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो बाय नाइट कोई डिफाइन नहीं है कि बाय नाइट कब से कब तक। इन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया, यहाँ रिफॉर्म कर दिया गया और यहाँ रिफॉर्म करके कह दिया गया
आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, सूरज छिपने के बाद और सूरज निकलने से पहले अगर कोई हाउस ब्रेकिंग करेगा उसकी भी डेथ, उस रॉन्ग डूअर की भी डेथ की जा सकती है। नेक्स्ट, mischief by fire or any explosive substance committed on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for the custody of property. समझ गए? या तो कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी टेंट, कोई ऐसा वेसल जो यूज किया जा सकता है फॉर द लिविंग और फॉर द लिविंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग और फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, उस पर अगर कोई अटैक करता है, बाय मिस्चीफ बाय फायर करता है या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के साथ करता है, द डेथ ऑफ द रॉन्गडूअर में बी कॉज्ड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ कब की जा सकती है? Theft, mischief, or house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised. ठीक है, अगर थेफ्ट करता है, मिस्चीफ करता है या हाउस ट्रेसपास करता है, जिसमें वो अप्रीहेंड करता है कि ऐसे उसके अटैक से, ऐसे थेफ्ट से, ऐसे हाउस ब्रेकिंग से, सॉरी हाउस ट्रेसपास से है, ऐसे मिस्चीफ से कौन सी अप्रीहेंशन होती है कि ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगा, देन इन सच सर्कमस्टांसिस डेथ में बी कॉज्ड ऑफ ए रॉन्ग डूअर। क्लियर है बात? बताइए, हमने पहले बता दिया कि ये कब तक एक्सटेंड करेगा, जब तक, जब डर होगा और जब तक कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है बात? चलिए छोड़ दीजिए और अब आ जाइए नेक्स्ट, सेक्शन 44। Section 44, right of private defense against deadly assault when there is a risk of harm to innocent person. एक If बात बताइए, एक पर्सन है हु हैज बीन अटैक्ड बाय अ मॉब, एक पर्सन है जिसके ऊपर पूरी की पूरी मॉब ने हमला कर दिया, भीड़ ने हमला कर लिया, भीड़ ने उसको घेर लिया और जो उसको मार रहे हैं। he had a, he had with him पिस्टल और सर्विस रिवॉल्वर। सपोज करिए पुलिस वाला था, किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए गया था, गैंग ऑफ डकैट्स के को अरेस्ट करने के लिए गया था उनमें से। अब उन्होंने जो है सब के सब जितने थे वहां पर, पूरी बस्ती ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन देर वर सम चिल्ड्रन एंड यंग एज चिल्ड्रन वर देयर, दे वर मिंगल्ड विद द गैंग ऑफ डकैट्स, उनके साथ ही वो वहीं पर कहीं भीड़ में जो है खोए हुए थे। अब अगर वो फायर करे तो उसको डर है कि इनमें से किसी भी बच्चे की डेथ हो सकती है। तो बताइए वेदर he can he can cause a death of a child where they have been mingled with the mob in the right of private defense? Yes, no? पढ़िए जरा, नो नो सर। कर सकते हैं, पढ़िए। कर सकता है। Section 44, right of private defense against deadly assault when there is a risk of harm to innocent person. If in the exercise of right of private defense against an assault which reasonably cause the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk. इलिस्ट्रेशन। A is attacked by a mob who attempt to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children. क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ
we have done with the जनरल एक्सेप्शन पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को पूरा समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। यस नो? नाउ it is the duty of all of you. You must have to study again जनरल एक्सेप्शन। बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत कुछ आता है यहाँ से। आप सब इसको दोबारा से अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। जनरल एक्सेप्शन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। किसी का कोई सवाल हो जनरल एक्सेप्शन से पूछ सकता है अभी भी, आज और पूछ सकता है। आज के बाद मत कहिएगा कि सर वो चीज हमको समझ नहीं आई थी। बताइए, ठीक है? सर मेरा ही डाउट है बताइए। सर, वो जो लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी में डिफरेंस आप बोले थे वो शर्मा वाले केस में, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। वो क्या समझ में नहीं आया? उसमें कोर्ट ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि मैं जो चीज मेडिकल इंसैनिटी है वो ही लीगल इंसैनिटी हो। तुम समझ रहे हो एक बात? एक पर्सन को जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है? जल्दी से बताइए तो हम अपना एग्जाम्पल दें। जी सर। एक तो जुबान से बोला कीजिए, अंगूठे से ज्यादा, ठीक है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 12 में लिखा हुआ है कि कोई पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसे कहा गया कि लेकिन अगर वो इन द रेसिस है, कुछ दौरान पर जो है वो सेन हो जाता है, वो अनसाउंड माइंड नहीं है, तो उस दौरान में किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन वो अगर हम मेडिकली देखेंगे तो मेडिकली वो अनसाउंड ही पर्सन है, लीगली वो अनसाउंड नहीं है। एट द टाइम व्हेन देयर इज अ टाइम गैप, अगर कुछ समय के लिए वो एकदम वीक चरित्र का पर्सन है, एकदम स्ट्रॉन्ग माइंड का पर्सन है, साउंड माइंड का पर्सन है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि मेडिकल हो सकता है कि कोई चीज मेडिकल इंसैनिटी हो, मेडिकली वो सेन हो, लेकिन वो लीगली सेन नहीं हो सकता। क्लियर है बात? जी सर। और कोई एनीवन एल्स? क्योंकि आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मुझे एक आधा काम करना है, इसीलिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है? और आप लोग जो है बस मेरे लिए और दुआ करना। आज रिजल्ट आया उत्तराखंड का, हो गया प्री। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बस कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए नहीं, दुआओं के लिए कहा है। इंशाल्लाह। बस ऊपर वाला आपके करा हो दे, जाएगा सर आपका। ठीक है? तो अच्छे से आप लोग, इसीलिए थोड़ा सा अब काम में बिजी हो जाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग जो अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है? और कल हम मिलते हैं, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज भी कर सकते थे, आज इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे कुछ काम करना है अभी बैठ के, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।